Hello dear students, welcome to English class. So today in this session we will be solving the question answers and the exercise given in the book of the chapter My Elder Brother. So yesterday I have sent you one creative writing question, that was letter writing. I hope that you all have completed the letter that was given on page number 73. Now today, first of all, let's read out the question answers. As you all know, question answers आपको नोटबुक में करना है और बाकी की जो एक्सरसाइज है वो आपको बुक में ही करनी है. ओके, सो लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन आंसर्स. So the first question is, students, what are the things that Munna liked to do? तो मुन्ना को क्या क्या करना पसंद था. Munna liked to play marbles, fly kites, play volleyball and kabaddi, drawing pictures of animals and birds. तो मुन्ना को मार्बल खेलना अच्छा लगता था, पतंगे उड़ाना अच्छा लगता था, वॉलीबॉल खेलना अच्छा लगता था, कबड्डी, ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. इन शॉर्ट उसे सिर्फ खेलना पसंद था, पढ़ाई करना उसे नहीं पसंद था. ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट डिड भैया डू ऑल डे? उसके जो एल्डर ब्रदर थे वो सारे दिन क्या करते थे? भैया रीड्स बुक ऑल द डे, वो सारे दिन बुक्स रीड करते रहते थे. Why was Munna not happy with the timetable that भैया made for him? मुन्ना के जो भैया हैं एल्डर ब्रदर, उन्होंने जो टाइम टेबल बनाया था, मुन्ना उसे देखकर खुश क्यों नहीं हुआ? क्या आप लोग बता सकते हो? Yes, correct. Munna was not happy with the timetable that भैया made for him because there was no time to play for it. क्योंकि टाइम टेबल में खेलने का टाइम तो मेंशन ही नहीं था, इसलिए मुन्ना खुश नहीं था. How do you think Munna felt when his brother was so strict with him? Why was भैया so strict with him? मुन्ना को कैसा लगा जब उसके भैया ने उसके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव किया? और उसके भैया जो हैं वो उससे स्ट्रिक्टली बिहेव क्यों करते थे? मुन्ना became sad and began to cry. मुन्ना जो है वो दुखी हो गया और रोने लग गया. When his brother was strict with him, Bhaiya was strict with him because it was his duty to take care that Munna would not waste his time. He wanted Munna to study hard. So मुन्ना का जो भाई है वो उससे स्ट्रिक्ट रहते थे क्योंकि वो अपनी ड्यूटी मानता था, जिम्मेदारी समझता था कि मुन्ना का ध्यान रखना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पढ़ाई करे और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करे. दैट इज़ वाई ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विथ Munna. Okay, so these are the 4 question answers, students. Write them down in your notebook. Now come to the book. In a book you have to open page number. So first you have to open page number 76. In page number 76 one question is given, that is, read the following sentences. Bhaiya has been studying in the same class for 2 years for a period of time. Munna was flying kites since morning from time in the past till the present. So students, हमने for और since का यूज़ पहले भी पढ़ा है. since का मतलब होता है जो काम past में शुरू हुआ है और present में भी चल रहा होता है, तो उसे वहाँ पर हम since यूज़ करते हैं. for का मतलब इतने सालों के लिए, इतने ईयर के लिए. ओके, सो अब आपको सेंटेंसेस पढ़ने हैं और for और since यूज़ करना है. फर्स्ट वन, I have lived in this house dash I was baby. इट मीन्स मैं इस घर में तब से रह रहा हूँ जब मैं बेबी था, छोटा बच्चा था. मतलब ये काम पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट तक चल रहा है, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? सिंस. आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस आई वॉज अ बेबी. ओके, नेक्स्ट वन, दिस बिग जार हैज़ बीन इन आवर फैमिली डैश मैनी ईयर्स. सो ये जो बड़ा जार है ये हमारी फैमिली में बहुत सालों से है. सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? फॉर. This big jar has been in our family for many years. Okay, the old banyan tree in the village has been there dash the last 200 years. So the old banyan tree in the village has been there for the last 200 years. Nobody has seen him dash yesterday. Nobody has seen him since yesterday. Okay, so these are the answers of the fill in the blanks that is given on page number 76. Now the next question. Next on the same page a paragraph is given. आपको उस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है. ओके, और ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें यूज़ करके उस पैराग्राफ्स को फिल करना है. सो फर्स्ट वन, so the paragraph, all the class 5 students of our school were gathering in front of principal's office.
वर और वॉज कहाँ यूज़ होता है? जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ वर यूज़ होता है, जब एक ही पर्सन होता है वहाँ या एक ही चीज़ होती है वहाँ वॉज यूज़ करना होता है। सो क्लास 5 स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे बच्चे, तो वहाँ हम वर यूज़ करेंगे। ऑल द क्लास 5 स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल वर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस। दे डैश गोइंग फॉर इंटर हाउस स्कूल रेस। अगेन यहाँ पर वर है, सो वर आएगा क्योंकि दे मतलब वो लोग सब, बहुत जन, एक से ज़्यादा लोग। सो दे वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस। ओके, द बस डैश एंड दे डैश फॉर द स्टेडियम। द बस अराइव्ड, क्योंकि ये पास्ट में चल रही है बात, तो वहाँ क्या आएगा? अराइव। द बस अराइव एंड दे लेफ्ट फॉर द स्टेडियम। अगेन दिस इज द सेंटेंस इज इन पास्ट। ये इंसिडेंट पास्ट में हो चुका है, तो हम क्या ईडी यूज़ करेंगे? पास्ट टेंस फॉर्म यूज़ करेंगे। द बस अराइव एंड दे लेफ्ट फॉर द स्टेडियम। द रनर्स वर टेकन टू द स्टार्टिंग पॉइंट। द रनर्स वर टेकन टू द स्टार्टिंग पॉइंट। So the runners were taken to the starting point. The runners took their position. Sir blew the whistle. One student of our school ran fast and came first. Everyone did their best and our school won the trophy. Everyone felt joyous. Okay, so this is the पैराग्राफ स्टूडेंट्स। तो आपको ये याद रखना है कि जब आप एक की बात कर रहे होते हैं वहाँ आप वॉज यूज़ करोगे, जब आप एक से ज़्यादा की बात यूज़ करोगे तो वहाँ आप वर यूज़ करोगे। और कोई भी स्टोरी और इंसिडेंट जो हो चुका होता है वो पास्ट में चलता है, तो वहाँ आप पास्ट टेंस फॉर्म्स यूज़ करते हो। ओके, फील का फेल्ट, विंस का वन, ओके, सो कम का केम, ब्लो का ब्लू, है ना। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड स्टूडेंट्स, येस्टरडे वी हैव रेड वन लेटर। ओके, हमने एक लेटर पढ़ा था, उस लेटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑन पेज नंबर 73। So I am going to read out those questions. You can write them in your book. Okay? So मैं वो questions read कर लेती हूँ, आपको अपनी वो book में लिखना है। The first question is who has written the letter? तो ये letter किसने लिखा है? So आपको blank में लिखना है प्रताप has written the letter. Okay? प्रताप has written the letter. प्रताप has written the letter. Next one. To whom has the letter been written? ये letter किसको लिखा जा रहा है? प्रताप अपनी मदर को लिख रहा है, सो आप लिख दीजिए ब्लैंक में मदर। ओके, नेक्स्ट इज वेयर इज़ द राइटर ऑफ द लेटर? जो लेटर का राइटर है, कौन है लेटर का राइटर? प्रताप है। वो कहाँ है? ही इज़ इन कोलकाता। ओके, सो आप वहाँ ब्लैंक में लिखेंगे कोलकाता। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज हॉस्टल? सो उसका हॉस्टल का नाम क्या है? सो द नेम ऑफ द हॉस्टल इज़ कृष्णाज बॉयज़ हॉस्टल। Clear? So that is the name. Next question is on which date was this letter written? So date लिखा हुआ है, so this letter was written on 10th July 2000. Clear? So these are the answers students. Now again there is a comprehension. There is one comprehension, एक passage दिया गया है और वहाँ पर आपको फिर उसके बाद questions दिए गए हैं, तो we are not going to we will discuss them. No need to write them anywhere. Okay, हम कहीं नहीं लिखेंगे उनको, हम just discuss कर रहे हैं कि पैसेज कैसे रीड करना है और कैसे हमें आंसर्स फाइंड आउट करना है। ओके, सो फर्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग। यहाँ मैसेज लिखा हुआ है, आपको करेक्ट करना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज and answer the questions that follow. Oliver was 9-year-old boy. He lived with other homeless boys in the orphanage. He was pale and thin, was where the other boys living there. This was because they had to work hard and but were never given enough to eat. The owner of the orphanage, Mr. Bumble, was cruel a man and he ill-treated the boys. The boys were always hungry. It was true that they were given 3 meals a day, but each meal consisted only a bowl of watery soup. They were almost starving, so it was decided by them to ask the master for one soup, but who would bail the cat? Finally, the task fell to Oliver. When the boys had assembled in the cold stone hall for the evening meal, the soup was served. It soon disappeared. The boys whispered to one another, and one boy pushed Oliver a little. Oliver, making a brave effort, stood up, walked up to the master with his trembling, "Please, sir, I want more."
सो ये एक स्टोरी है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को रीड करना है और उसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करनी है, ओके, इस पैराग्राफ में से। तो नॉर्मली जब हम पैसेज रीड करते हैं तो हम उसी में से ही आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, आपको भी वो करने हैं, जस्ट ओरली करने हैं, आपको इसमें कुछ करना नहीं है, ओके, क्लियर। सो कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स इन द नोटबुक और बाकी एक्सरसाइज पार्ट इन द बुक इटसेल्फ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।